براہ راست لے چلیں آپ کو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت ہی مایہ ناز جوان لیڈر جو ہیں وہ حماد اظہر صاحب بھی ہیں، جو پیٹرولیم اور پاور کے منسٹر ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب اپنے یہ ایک روزہ دورے پہ یہاں پہ ہیں، جس میں وہ ڈفرینٹ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو ڈفرینٹ ڈویژنس کے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے، پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور اوور آل جو ہمارا ایک پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے اس کے مطابق جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو رفتار ہے اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سے اور چیف منسٹر صاحب سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہو چکی ہے، چیف منسٹر سے الگ بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور ابھی ان کی ڈی جی خان ڈویژن کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوگی، سرگودا ڈویژن سے ہمارے جو ممبران معزز ممبران پارلیمنٹ ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک روزہ دورہ جو ہے وہ جیسے روٹین میں پرائم منسٹر آتے ہیں، اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے منشور کے مطابق ان کی پریورٹیز کے اوپر جو کام ہے عوام کی ویل بینگ کے لیے، فلاح و بہبود پہ، ان کے اوپر ہم کہاں پر پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو صرف یہی تھا کہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم ایک چابی چڑھی اور لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگ گئے۔ فضل الرحمان صاحب بھی واپس جاب پہ آ گئے، مریم صاحبہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ۔ ہم آپ کو بتاتے تھے، آپ اکثر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ ہیں، سوال کرتے ہیں یہ الگ ہو گئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اکٹھے ہیں جب یہ الگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں مریم اور چچا میں بڑی سخت لڑائی ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں نہیں، وہ بھی نورا کشتی ہے، وہ بھی دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ سب چور ہیں، اور چور جو ہوتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی تو وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ اندر سے ایک ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اندر سے پسند نہیں کر رہے ہوتے وہ، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ لا انفورسمنٹ سے، عدالتوں سے، سزاؤں سے بچ سکیں گے۔ اگر وہ الگ الگ ایک دوسرے سے لڑیں گے تو پھر جو ان کا پورا مافیا کا سسٹم ہے وہ ویکر ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے جب جب ان کے اوپر فرد جرم لگیں گی، احتساب کا پھندا ان کے اوپر تنگ ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گھسیٹ گھسیٹ کے تیتر کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا گھسیٹ گھسیٹ کے ایک دوسرے کو یہ کھانے کھلا رہے ہیں اپنے گھروں پہ، گھسیٹ گھسیٹ کے عزت دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور اسی طریقے سے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا اسلام آباد، وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی تھوڑا سا فٹ ورک کر کے نا جگہ بنا رہے ہیں۔ جیسے وہ جگہ بناتے تھے، مریم صفدر صاحبہ ٹویٹ کر کے، کسی نہ کسی کو لانچ کر کے، کسی کو گالی دے کے وہ ایک دم اس ماحول کو خراب کر دیتی تھی۔ لیکن اب چچا پہ اور جو کزن ہے اس کے اوپر کیونکہ فرد جرم ہونے جا رہی ہے اور وہ چوری کی ہے، اور اگر یہ ہو گئی تو یہ رواج پڑ جائے گا یہاں پر انصاف ہونے کا، تو آپ نے دیکھا مریم صاحبہ بھی مکمل سائلنٹ موڈ پہ ہیں۔ تو جب جب ان کی کرپشن کے کو پکڑے جانے کا موقع آئے گا، آپ دیکھیں گے یہ سائلنٹ موڈ پر فوری طور پر لگ جائیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کو ہم اور خوشخبریاں دیں گے کہ لوٹی ہوئی اور بہت ساری دولت جو ہے وہ انرتھ ہو رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کدھر گیا پیسہ جو آپ نے واپس لینا تھا؟ ابھی تک کو تقریباً 550 ارب تو نیب ریکور کر چکی ہے۔ اب آپ کہیں گے 550 ارب کا عوام کو کیا فائدہ؟ یہ 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ ہے، اگلے 3 سال میں، انہیں چوروں سے لوٹے ہوئے پیسے سے ہی آپ کو دیا ہے۔ اگر وہ ریکور نہ ہوتے تو ہم تو نوٹ نہیں چھاپ رہے، ہم تو ملک کو مقروض نہیں کر رہے جیسے یہ کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ 550 ارب نہ آتا حکومت کے پاس تو یہ 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ حکومت کہاں سے دیتی؟ تو جیسے جیسے ان چوروں سے ہم پیسہ ریکور کریں گے ویسے ویسے عوام کو سہولت ہم زیادہ دیتے جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی چند دن پہلے، انہوں نے چائے کی پیالی کے اندر طوفان برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جب چودھری مونس الائی نے بڑی منجھی ہوئی سیاست کی، میں یہ کہوں گا بڑے رائٹ ٹائم پہ، آپ کو پتہ ہے کرکٹ میں اور سیاست میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر بال کو بلہ ٹائمنگ پہ لگ جائے، اور اسی طریقے سے اگر سیاست میں حکمت عملی اور بیان ٹائمنگ پہ دے دیا جائے تو بال ہمیشہ رسے سے باہر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بیماری کے بہانے، مزاج پرسی کے بہانے، یہ ایک پنجاب کے بہت ہی معتبر خاندان، ایک بہت ہی سیاسی قد
कद और काट का जो ख़ानदान चौधरी बरादरान का है, ये उनके कंधे पे बंदूक रख के अपना जो कन्फ्यूजन फैलाने का फॉर्मूला इनका है, ये वो करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब दिया, अपनी ख़ानदानी वज़ादारी का मुजाहरा भी किया, ये भी बताया कि वो कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे जो उन्होंने किया है, और इन्हों का मक्कू भी ठप देता। उसके बाद आप देखेंगे कि सियासी बातचीत नहीं हो रही, इनके जो अफलातून है उन्हें मसला है तमाशे पे, कि मोनस अलाई ने तमाशा क्यों कह दिया है। और भाई उन्होंने आपके घर आने को तमाशा नहीं कहा था, जो आप बाहर तमाशा लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं और जो दूसरे लोग उसके अंदर से तमाशा निकाल रहे हैं। उन्होंने एक अमूमी बात की थी, किसी पे ख़ास बात तो नहीं की थी। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको फ़ौरन तकलीफ़ शुरू हो गई कि तमाशा लग गया है। तो ये एहसन इकबाल साहब ये जवाब दें कि इन्हें कौन सा तमाशा कहाँ बुरा लगा है और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें आपकी हेरा फेरी, आपकी झूठ, आपकी फरेबकारी और आपकी लूट मार पे। और दूसरी बात, मैं एक दफ़ा फिर लाहौर से शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, जिन्होंने इस मुल्क के चपड़ासियों को भी अरबपति कर दिया है। गरीब की खिदमत ऐसे ही तो नहीं की जाती ना, गरीब की खिदमत करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो मलिक मकसूद चपड़ासी जो है, उसके अकाउंट से जो 4 अरब निकला था, उसके लिए मैं पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर चुका हूँ। देखते हैं वो अब इस पर क्या करते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की है कि जैसे तमगाए डिफरेंट होते हैं ना हुस्न कारकर्दगी, उस तरह एक तमगा रखा जाए इनके लिए, जो ये नित नए तरीके दरियाफ्त करते हैं लूट मार के, चोरी के। और बेचारे चपड़ासी जिसकी 9,000 तनख्वाह है, उसको इन्होंने 4 अरब उसके अकाउंट में डाल के निकाल लिया। और मैंने पहले भी बार बार कहा कि जो शख्स फौत हो जाता है उसका वोट नून लीग का हो जाता है। अब मसरूर अनवर बेचारे फौत हो गए थे, उनके अकाउंट में से ये पैसे निकाल के शहबाज शरीफ साहब अपनी बेगम के लिए घर लेते रहे, गाड़ियाँ लेते रहे। तो जो मुर्दे हैं वो भी इनके खाते में है, जो नहीं पैदा हुए वो भी इनके खाते में है, और जो जिंदा हैं उनके तो ये वैसे ही बोरे शोरे गायब कर लेते हैं। तो ये वाला जो तरीकाकार है वो दुरुस्त हुआ। तीसरी बात, KPK में आपने देखा, हमने बिल्कुल पहले मरहले में नुकसान उठाया क्योंकि हमने टिकट गलत दिए, हमने अपने वर्कर को अपने वर्कर के सामने खड़ा होने दिया, अपनी लीडरशिप को अपने, तो हमारा मुकाबला था PTI वर्सेस PTI, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। अभी जो रिजल्ट्स आए आपने देखा, हमने अपनी हिकमत अमली चेंज की, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी नज़र आई जहां पहले खड़ी थी। बिल्कुल मुल्क में मुश्किलात है, आज भी, कल भी पेट्रोल बढ़ा है, बहुत कोशिश की कि वो ना बढ़ाना पड़े, 12 रुपये के करीब बढ़ा है। बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जब आप तकलीफ़ में होंगे तो एक ऐसा वज़ीर आज़म जो हमेशा गरीब के लिए सोचता है वो कभी खुश नहीं होगा। लेकिन कोई हमें इसका हल बता दे कि अगर बाहर $40 से $95 पे पेट्रोल चला जाएगा तो हुकूमत के पास क्या हल है। एक हल है कर्जे लें और सब्सिडी डालें, उसमें आपकी नस्लों को मकरूज़ करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मकरूज़ करें, अपनी तमाम तर जो ताकत इस मुल्क के पास है इसकी आवाम की वजह से, उसको मकरूज़ करें। और दूसरा हल है कि पेट पे पत्थर बांधें, मुश्किल वक्त है, इकट्ठे एकजुट होकर गुजारें, और वो हम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल खुश नहीं हैं जो ये महंगाई की वेव आती है, लेकिन हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में ये इंटरनेशनल महंगाई, अब अगर ये रूस और यूक्रेन का ये जो मसला है ये अगर थमता है तो आपको नज़र आएगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, पेट्रोलियम की कीमतें ये नीचे आएंगी, जिससे ओवरऑल महंगाई के ऊपर असर होगा। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो सूबाई काबीना है पंजाब की, उसमें भी हम कुछ नए लोगों को ला रहे हैं, जिन लोगों को हमें लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी की ज़रूरत है। क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और उसके अंदर आबादी बहुत बड़ी है, और क्योंकि हमने छोटे यूनिट्स नहीं बनाए पहले, तो सेंट्रलाइज सिस्टम है। कई जगहों पर आपको ज़्यादा इदारे बनाने की भी ज़रूरत है और कई इदारों में ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में हम मज़ीद एडिशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ओवरऑल पॉलिसी और स्ट्रेटजिक ये डायरेक्शन दे दी है चीफ मिनिस्टर को भी, और अपने पार्टी के भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं और सदर साहब हैं पंजाब के, उनको। और इसमें आने वाले दिनों में आपके साथ हम शेयर करेंगे ये इन्फॉर्मेशन कि कौन से नए पोर्टफोलियो या कौन से नए लोगों को कौन सी जिम्मेदारियां हम देने जा रहे हैं। बात पूरी कर लें। इसी तरीके से हम फेडरल गवर्नमेंट में भी हम ये समझते हैं कि वहाँ भी हमें ज़रूरत है नए लोगों की, क्योंकि हम ऐसे इस टाइम डिसाइसिव मोमेंट पे चले गए हैं कि हम चौथा साल है हमारा, इकॉनमी हमें बिल्कुल बैंकरप्ट मिली थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 5.37 पे आपकी ग्रोथ है। आपके मुल्क के फॉरेन रिजर्व हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं, 7 अरब पे मिले थे, आज 22 अरब पे है। एक्सपोर्ट 20 अरब पे मिली थी, आज 30 अरब होने जा रही है।
अगर आप देखें रेमिटेंसेस तो वो रिकॉर्ड हद तक ऊपर है, अगर आप कंस्ट्रक्शन का एरिया देखें तो बहुत ऊपर चला गया, प्रॉपर्टी का देखें तो ऊपर चला गया, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर चले गई, होम अप्लायंसेस देखें ऊपर चले गए, ट्रैक्टर ऊपर चले गए, गाड़ियाँ ऊपर चली गई, मोटरसाइकिल्स ऊपर चले गए, साइकिल ऊपर चले गए, वॉशिंग मशीन, पंखे, तमाम चीज़ों की, ग्रॉसरी की सेल्स, सब कुछ ऊपर गया। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब हमने इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया है, अब हमने अपना जो एजेंडा है उसको फाइनल हम स्टेज में है, तो हमने पूरा उसके ऊपर पुश कर रहा है। इसलिए हम फेडरल जो काबीना है उसके अंदर भी एडिशंस करने जा रहे हैं और कुछ नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या नए पोर्टफोलियोज और नए लोगों को उसमें भी हम ऐड करने जा रहे हैं, उसमें भी ऐड करने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें पॉलिसी डायरेक्शन दे दी और जब इसके अंदर नए खदोखाल नई बातें आएंगी तो वो आपके साथ नए नाम या कौन से नए लोगों को ये जिम्मेदारी मिलेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा गिल साहब ये बताएं, पहले इधर फिर आप अच्छा बताइएगा कि तरीन साहब के ग्रुप की रात मीटिंग थी और उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि हमसे अपोजिशन वाले तो राब्ता कर रहे हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से भी हमसे राब्ता हुआ है, पहली दफ़ा उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है। आप क्या समझते हैं कि आपको अपोजिशन के साथ साथ अपने इत्तेहादियों या अपनी ही जमात की अरकान असम्बली से भी किसी किस्म का खौफ है, किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में वो भी धोखा दे सकते हैं? और अगर राब्ता हुआ है तो क्या तरीन साहब को मना लिया गया है, वो ऑल आउट पीटीआई के साथ खड़े होंगे? देखिए, पहली बात तो कि तरीन साहब ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब लोगों की अजम्पशंस के ऊपर सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। अगर किसी की अजम्पशन है और वो उस अजम्पशन पे एक सवाल करता है तो वो उनकी अपनी अजम्पशन है, उसका जवाब भी उन्हीं को देना है, हमने नहीं देना। तरीन साहब ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर साहब से के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करने का बयान नहीं दिया। रही बात राब्तों की, हमेशा रहते हैं। अभी हमारे दोस्त हैं अजमल चीमा साहब, उनके जो भतीजे की शादी थी वहाँ मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। जिन बहुत सारे दोस्तों को आप तरीन साहब का ग्रुप कह रहे हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो राब्ते तो हुकूमती लोगों के और उनके हमेशा रहते हैं, मुलाकातें भी रहती हैं। तो इसलिए इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो ना देखा जाए, इसको इसके प्रोपोर्शन में देखा जाए, इसको इसकी रियलिटी में देखा जाए, इसमें से थेरीज ना निकाली जाए। गिल साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब और फेडरल में आपकी कैबिनेट जो है वो मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट के बराबर उसका साइज़ हो चुका हुआ है, बल्कि कई जगहों पे साइज़ बढ़ा है। इशू गवर्नेंस का है, काबीना में इजाफे से महंगाई और आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचेगा और महंगाई को काबू पाने के लिए अमली इकदाम क्या कर रहे हैं? ये भी ऐड कर लें कि आईनी तौर पर आप एक लिमिट से बढ़ा नहीं सकते कैबिनेट को और उतना साइज आप पहले ही अवेल कर चुके हैं। मैं बताता हूँ, देखिए दो बातें ध्यान में रखिएगा कि एक तो ये कि कुछ चीज़ों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं और कुछ के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ सीएम का बीट रिपोर्टर होता है, फिर अचानक आपका चैनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रख देता है। वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज ढूंढ के लाता है, इसलिए हर जगह पे गुंजाइश मौजूद होती है। अंसारी साहब के साथ जब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाया जाता है तो दुनिया टीवी की ताकत दुगनी हो जाती है। इसी तरह जब जियो टीवी, इसी तरीके से एक्सप्रेस और जीएनएन दूसरे दोस्तों में, इसी तरीके से काबीना में भी ये होता है। आप अगर तो आप करने आए हैं अयाशी और पैसा बनाने, तो फिर सियासत से ज़्यादा वेला काम कोई नहीं है। लोगों से मिलें, चाय पिएं, उनके काम कराएं और पैसा बनाएं। लेकिन अगर आप वाकई खिदमत करने आए हैं तो मैं आपको पूरे सिद्के दिल से बता रहा हूँ, इससे मुश्किल नौकरी कोई नहीं है। आपको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी चीज़ें बची होती हैं जो आप नहीं कर पाते। तो बिल्कुल और लोगों को होना चाहिए, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लॉन्ग टर्म में आवाम को फ़ायदा होगा, गुर्बत में भी कमी का उसका फ़ायदा होगा, एजुकेशन जिस महकमे में काम हो रहा है उस महकमे में उसकी बेहतरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क के देखें छोटे और बड़े कितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, मुल्क के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक अगर आपके मिनिस्टर हैं यहाँ नीचे हैं या ऊपर हैं, वो अगर नहीं मिल पाते तो आपको क्या दूसरे लोग नहीं साथ लेने? इसी तरीके से कोई और मिनिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लोग होने चाहिए, ज़रूरत नहीं है तो खान पीन वास्ते लोग नहीं लाने चाहिए। और इमरान खान का मतमा नज़र है प्रोडक्टिविटी, इसलिए जहाँ ज़रूरत हुई लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत हुई नहीं लगाएंगे और आइन और कानून के मुताबिक उसकी तादाद सवाल में अगला तहरीके अदम इत्मीनान आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ख्वाब में आप दोस्तों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में आज एक सहाफ़ी के साथ वाकया पेश आया है जो उसकी तरफ से किया गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि आज़ादी सहाफत पर भी कहीं हमला हो रहा है?
लाहौर में मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। वो लिखते हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई बेहिस, संगदिल और जालिम है। हुकूमत तेल का बम गिराकर अवाम से जीने का हक छीन रही है। अवाम इलेक्शन के वक्त इमरान खान एंड कंपनी को मुनासिब सबक सिखाएं। हुकूमत की हिमायत करने वालों को भी अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।